बेटे आज टॉपिक ले लेते हैं एएनएस। एएनएस का फुल फॉर्म है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन है ये। एएनएस, एएनएस का फुल फॉर्म क्या? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एएनएस लेने से पहले सबको पहले बेटे मेरा गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। सबको मेरा गुड मॉर्निंग बेटे। So regarding ANS, autonomic nervous system. The nerve fibers are of two types. बॉडी में नर्व फाइबर्स होते हैं, ये दो तरीके की होती हैं। So today's topic is ANS, autonomic nervous system. The nerve fibers are of two types. The nerve fibers are of two types. One is somatic and second is autonomic. One is somatic and second is autonomic. So in autonomic में क्या होता है? Efferent fibers supply
smooth muscles, cardiac muscles, and exocrine glands. Efferent fibers supply the smooth muscles, cardiac muscles, and exocrine glands. The afferent fibers bring information from the viscera. The afferent fibers bring information from the viscera. Example is visceral pain sensation. विसरा जानते ही हो, बॉडी के ऑर्गन को क्या बोलते हैं? विसरा, VISCER, विसरा. So example is visceral pain sensation. ANS is also called vegetative nervous system. ANS is also called vegetative nervous system. Vegetative, VEGETATIVE. ये फुल क्वेश्चन आ सकता है. डिस्क्राइब द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ANS. इसका दूसरा नाम क्या है? वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम. And the other name is involuntary nervous system. Involuntary nervous system. Involuntary माने अरे जिस चीज पर हमारी इच्छा का कंट्रोल ना हो उसको क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री. Involuntary nervous system. ANS has two divisions. इसके दो पार्ट इसके होते हैं. ANS has two divisions. One is sympathetic and second is parasympathetic. एक सिंपैथेटिक होता है और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक होता है. जैसे कार में दो चीजें होती हैं, एक एक्सीलेटर होता है और एक ब्रेक होता है. एक्सीलेटर से कार तेज भागती है और ब्रेक से कार को आप रोकते हैं. तो सिंपैथेटिक सिस्टम सेम एक्सीलेटर की तरीके से काम करता है. So ANS has two divisions. One is sympathetic and second is parasympathetic. अब इसको एक एक करके लेंगे. पहले हम कौन सा लेंगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. दूसरा इसका क्या नाम है? थोरेको लंबर आउटफ्लो. थोरेको, इसलिए इसका ये नाम क्यों पड़ा? थोरेको लंबर आउटफ्लो, यानी इसके फाइबर्स, सिंपैथेटिक फाइबर्स कहां से? स्पाइन से अराइज होंगे. स्पाइन के किस पार्ट से? थोरेसिक रीजन और लंबर रीजन से. इसलिए इसका क्या नाम हो गया? थोरेको लंबर आउटफ्लो. लेटरल हॉर्न. अब इन सेगमेंट में यानी थोरेसिक और लंबर सेगमेंट में लेटरल हॉर्न, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड का लेटरल हॉर्न. सो लेटरल हॉर्न इज प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. लेटरल हॉर्न, HORN, horn is present in each segment of the spinal cord. From T1 कौन सा हो गया? thoracic first. From T1 to
L2 segment and sometime up to L3. सर तो रिपीट कर दीजिए. सिंपैथेटिक फाइबर्स कहाँ से अराइज होते हैं? सिंपैथेटिक फाइबर्स अराइज होंगे स्पाइनल कॉर्ड के किस पोर्शन से? फ्रॉम P1 टू L2 एंड सम टाइम फ्रॉम L3. From each lateral horn of the spinal cord arises from each lateral horn of the spinal cord arises preganglionic sympathetic fibers from each lateral horn of the spinal cord arises preganglionic sympathetic fibers come out of the cord with anterior nerve root. After some distance, it leaves the anterior nerve root. After some distance, it leaves the anterior nerve root and then join with the sympathetic trunk. Preganglionic fibers from the anterior nerve root. Preganglionic fibers from the anterior nerve root to the sympathetic chain is called preganglionic fibers from anterior nerve root to the sympathetic chain is called white ramus communicans. White ramus की स्पेलिंग क्या है? RAMUS. White ramus communicans. COMMUNICANS. White ramus communicans. अब ये फाइबर्स किसमें एंटर हो गए? सिंपैथेटिक ट्रंक में. After entering in the sympathetic trunk, तब इसका फेट क्या होगा? पहला पॉइंट लिखो. Some preganglionic fibers move up or down. यानी कुछ फाइबर्स सिंपैथेटिक ट्रंक में ऊपर चले जाते हैं और कुछ नीचे चले जाते हैं. Move up or down. The preganglionic fibers move up or down and then synapse with several neurons with several neurons in the sympathetic trunk, and then synapse with the several neurons in the sympathetic trunk.
From these synapses arises post ganglionic fibers. इससे क्या साइनेप्स से क्या राइज होंगे? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। तो कुछ फाइबर्स ऊपर चले गए सिंपैथेटिक ट्रंक में, कुछ नीचे चले गए। वहां जाके इन्होंने बाकी न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स बनाया और साइनेप्स से फिर फाइबर्स निकलेंगे। उन फाइबर्स को क्या कहते हैं? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। क्या बोलेंगे इसको? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। सेकंड पॉइंट, some preganglionic fibers leave the sympathetic trunk. Some preganglionic fibers leave the sympathetic trunk, यानी वो सिंपैथेटिक ट्रंक को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल जाते हैं, तब भी उसका नाम क्या होगा? preganglionic fibers. So some preganglionic fibers leave the sympathetic trunk and still remain as preganglionic fibers, and still remains as preganglionic fibers. They enter in the ganglia. ये कहाँ एंटर करते हैं? गैंग्लिया में। They enter in the ganglion. They enter in the ganglion, which is outside the sympathetic trunk. Which is outside the sympathetic trunk to synapse with the next order neuron. To synapse with the next order neuron. These proceed as post-ganglionic fibers. यानी कुछ प्री-गैंग्लियोनिक फाइबर्स सिंपैथेटिक ट्रंक को पेनिट्रेट करके बाहर आ गए, तब भी उसका नाम क्या है? प्री-गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं। और बाहर सिंपैथेटिक ट्रंक के बाहर क्या प्रेजेंट है? गैंग्लियन प्रेजेंट है। वहां पर इसका साइनेप्स हो जाता है और जहां से क्या अराइज होगा? नेक्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, अगले न्यूरॉन अराइज होते हैं और उन गैंग्लियन से फाइबर्स निकले। अब इस फाइबर्स का क्या नाम हो जाएगा? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। द स्ट्रक्चर्स, अभी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहाँ जाते हैं? द स्ट्रक्चर्स इनर्वेटेड बाय द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर द स्ट्रक्चर्स इनर्वेटेड मैंने सप्लाई, कहाँ कहाँ सप्लाई होती है? The structures innervated, INNERVATED. So the structures innervated by the postganglionic fibers are innervated by the postganglionic fibers are the structures innervated by the postganglionic fibers are. First is smooth muscles. Smooth muscles of the respiratory tract. और कहाँ का? GIT. Smooth muscles of the respiratory tract, GIT, and vascular tree. तो स्मूथ मसल्स में उसकी सप्लाई हो गई पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। और कहाँ जाएंगे? कार्डियक मसल्स। कहाँ जाएंगे? कार्डियक मसल्स। थर्ड
sweat glands, sweat glands, sweat, S-W-E-A-T, sweat glands. And fourth is erector pili muscle, erector, ये स्किन में होते हैं, erector, A-R-R-E-C-T-O-R, erector pili, P-I-L-I, erector pili muscles of the skin, erector pili muscles of the skin. और कहाँ जाएंगे पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन सा, सलेवरी ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियास एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फिर सुन लीजिए, द स्ट्रक्चर्स इनर्वेटेड बाय पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स आर, कहाँ कहाँ जाएंगे, स्मूथ मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, GIT एंड वेस्कुलर ट्री। और कहाँ जाएंगे, कार्डियक मसल्स। थर्ड, द स्वेट ग्लैंड्स, एंड फोर्थ इज द erector pili muscles of the skin, and fifth is exocrine gland. Exocrine glands में कौन सा, salivary gland, pancreatic glands and gastric glands. अब हम आ जाते हैं सिंपैथेटिक ट्रंक में, क्या होते हैं, गैंग्लिया होते हैं। सो राइट डाउन सिंपैथेटिक गैंग्लिया, GANGLIA, गैंग्लिया। अब गैंग्लिया होता क्या है, सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर गैंग्लिया, दीज आर द स्ट्रक्चर्स वेयर pre and post ganglionic fibers synapse with each other. So these are the structures where pre and post ganglionic fibers, where pre and post ganglionic fiber synapse takes place. ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स साइनस बनाता है, किसके साथ, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स को, उस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। नेक्स्ट इज सिंपैथेटिक ट्रंक। सिंपैथेटिक ट्रंक, अभी सिंपैथेटिक ट्रंक क्या होता है ना, दिस इज अ चेन ऑफ गैंग्लिया, दिस इज अ चेन ऑफ गैंग्लिया lateral to the vertebral column, this is a chain of ganglia lateral to the vertebral column and extending from neck to the coccyx, and extending from neck to the coccyx. So what is sympathetic trunk? This is a chain of ganglia lateral to the vertebral column and extending from neck to the coccyx. Coccyx, COCCYX, coccyx. अब सिंपैथेटिक ट्रंक कितने होते हैं, दो होते हैं। सो देयर आर टू सिंपैथेटिक ट्रंक, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ एक एक सिंपैथेटिक ट्रंक होता है। तो कितने हो गए, दो। सो देयर आर टू सिंपैथेटिक ट्रंक, देयर आर टू सिंपैथेटिक ट्रंक, वन ऑन ईदर साइड, one on either side of the vertebral column. अब एक सिंपैथिक ट्रंक के अंदर कितने गैंग्लिया होते हैं, कितने होते हैं, 22, 22।
Each sympathetic trunk consists of a sympathetic trunk consists of 22 गैंग्लिया, 22 गैंग्लिया होते हैं एक सिंपैथेटिक ट्रंक में। और सिंपैथेटिक ट्रंक कितने होते हैं? 2 होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वन ऑन ईदर साइड ऑफ द स्पाइन, यानी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ एक एक सिंपैथेटिक ट्रंक होता है। और गैंग्लिया क्या होता है? जहां प्री गैंग्लियोनिक फाइबर साइनेप्स करता है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से। There are three cervical ganglia. There are three cervical ganglia in the sympathetic trunk. There are three cervical ganglia in the sympathetic trunk. अब सर्वाइकल गैंग्लिया में ये कौन कौन से 3 गैंग्लिया मैंने बताए, इनका नाम क्या क्या है? सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर. So there are 3 cervical ganglia in the sympathetic trunk, and these are superior, middle and inferior. Superior, middle and inferior. Inferior cervical ganglia. Inferior cervical ganglia fuse with the first thoracic ganglia. Inferior cervical ganglia fuse with inferior cervical ganglia fuse with the first thoracic ganglia to form stellate ganglion. Stellate, STELLATE. The inferior cervical ganglion फर्स्ट थोरेसिक गैंग्लियन से यूनाइट कर जाता है और क्या बनाएगा? स्टिलेट गैंग्लियन. सो इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन फ्यूज विद द फर्स्ट थोरेसिक गैंग्लियन टू फॉर्म स्टिलेट गैंग्लियन. स्टिलेट, STELLATE, स्टिलेट गैंग्लियन. Then is collateral ganglion. Collateral ganglion. Collateral ganglion. Collateral ganglion. These are situated in relation with the abdominal aorta. These are situated with the abdominal aorta and its branches. These are situated with the abdominal aorta and its branches.
So these are situated in relation with the abdominal aorta and its branches. There are three collateral ganglia. अब ये तीन कोलेटरल गैंग्लिया कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज सीलियक, COELIAC, सीलियक। दूसरा कौन सा है? सुपीरियर मीसेंट्रिक, MESENTERIC, सुपीरियर मीसेंट्रिक। And third is inferior mesenteric. So collateral ganglia. So these are situated in relation with the abdominal aorta and its branches, and there are three collateral ganglia. So one is celiac, second is superior mesenteric, and third is inferior mesenteric. Then there are peripheral ganglia. Peripheral ganglia, ये कहाँ होते हैं? These are situated within. So these are situated within or close to the structures innervated by them. So these are situated within or close to the structures innervated by them. अब स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? हार्ट, ब्रोंकाई, पेनक्रियाज and urinary bladder are innervated by the peripheral ganglia. फिर सुन लीजिए, peripheral ganglia, these are situated within or close to the structures innervated by them. कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? हार्ट, ब्रोंकाई, पेनक्रियास, urinary bladder are innervated by the peripheral ganglia. अब एक गैंग्लिया अभी मैंने बताया था, सीलियक गैंग्लिया इज प्रेजेंट in association with celiac artery. Celiac ganglia is present in association, यानी उसके पास, in association, ASOCIATION, in association with celiac artery, COELIAC, celiac artery. और सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन और इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन ये प्रेजेंट होता है। सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन कहाँ प्रेजेंट होगा? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के पास में। और इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन कहाँ प्रेजेंट होगा? इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के पास। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जब स्टिमुलेशन होता है, या इसका फंक्शन क्या है, या ये सिस्टम जब स्टिमुलेट होगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, बेटे हाँ, ये चार्ज नहीं कर रहा है, एक सेकेंड रुको जरा।
लैपटॉप मेरा चार्ज नहीं कर रहे बेटे, दूसरे प्लग पे लगाते हैं इसको। मानो एक सेकंड बेटा, पता नहीं क्या आ रहा था। So effects of sympathetic trunk, sympathetic stimulation or function of sympathetic nervous system. अब पहला सबसे पहला इफेक्ट किस पर फंक्शन क्या होता है, ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या असर इसका होता है, CVS. So effect on cardiovascular system. Effect on cardiovascular system.
अब इससे सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, हार्ट ले लेंगे। हार्ट, जब सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो हार्ट पर क्या असर पड़ता है। कार्डियक स्टिमुलेशन, हार्ट स्टिमुलेट, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो हार्ट क्या होगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। उससे क्या होगा, देयर इज इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, देयर इज इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देयर इज इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। और क्या होगा, कोरोनरी ब्लड सप्लाई, इंक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो, इंक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो। इंक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो, हार्ट रेट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट एंड पॉजिटिव chronotropic effect, positive chrono, CHRO, chrono, CHRONO, chronotropic, TROPIC, positive chronotropic effect. So this is the effect of sympathetic stimulation on the heart. Second, effect on blood vessels. ब्लड वेसल्स पे क्या असर पड़ता है जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। देयर इज वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ, वेजोकंस्ट्रिक्शन में क्या होता है, ब्लड वेसल का डायमीटर घट जाता है। ब्लड वेसल का डायमीटर क्या होगा, घट जाएगा। और वेजो डायलिटेशन में क्या होगा, डायमीटर बढ़ जाता है। So blood vessel, effect on blood vessels. तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होने से क्या होगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ, vasoconstriction of cutaneous and splenic arterioles, vasoconstriction of cutaneous and splenic arterioles, और वेजो डायलिटेशन कहां पर हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी में और स्केलेटल मसल्स में। कोरोनरी एंड स्केलेटल आर्टेरियोलर डायलिटेशन, या सीधा देख सकते हैं वेजो डायलिटेशन, vasodilation in coronary arteries, and the arteries in the skeletal muscles. और वेन्स में क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। वीनो कंस्ट्रिक्शन, वीनो, VENO, वीनो कंस्ट्रिक्शन। अब इसका ब्लड प्रेशर पे क्या असर पड़ता है, इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, टैकिपनिया, टैकिपनिया, TACHYPNEA, टैकिपनिया, TACHYPNEA, टैकिपनिया। और ब्रोंकाई में क्या हो जाएगा, डायलिटेशन हो जाएगा, ब्रोंको डायलिटेशन।
सर एक बार रिपीट कर दीजिए। रेस्पिरेशन में क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और ब्रोंकाई का डायमीटर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंकोडायलेटेशन। और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गया, इसको क्या कहते हैं, टेकिपनिया। टेकिपनिया, TACHYPNEA, टेकिपनिया। Next effect is on GIT. Effect on GIT. स्फिंक्टर्स में क्या होगा, जीआईटी में जितने स्फिंक्टर्स होते हैं, स्फिंक्टर्स आप जानते हैं कहाँ कहाँ होते हैं, जहाँ इसोफेगस स्टमक से यूनाइट करता है स्फिंक्टर, वहां पर प्रेजेंट होता है, इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। क्यों होता है, जिससे स्टमक का कंटेंट, स्टमक के अंदर जितना फूड मटेरियल होता है वो वापस इसोफेगस में ना जा सके, इसे क्या कहते हैं, इसोफेजियल स्फिंक्टर्स कहते हैं। तो स्फिंक्टर्स में क्या होगा, स्पाज्म हो जाएगा। स्पाज्म ऑफ स्फिंक्टर्स, स्फिंक्टर्स, SPHINCTERS, spasm of sphincters and inhibition of peristalsis. पेरिस्टालिटिक मूवमेंट क्या होगी, घट जाएगी। पेरिस्टालिटिक मूवमेंट क्या होगी, घट जाएगी। अब देखो इससे एक आइडिया लगाओ, जब हम लोग मोशन पास करने जाते हैं उस समय कौन सा सिस्टम एक्टिवेट करता है, सिंपैथेटिक एक्टिवेट नहीं करेगा। क्यों, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट इसमें घटाती है, तो उसमें कौन सा सिस्टम एक्टिवेट करेगा, इसका जस्ट ऑपोजिट सिस्टम। कौन सा है वो, पैरासिम्पैथेटिक। ये छोटी छोटी चीजें हैं, देखो ध्यान देने वाली है। इसमें सिंपैथेटिक में क्या हुआ, स्मूथ मसल रिलैक्स हो गए, स्फिंक्टर्स में क्या हो गया, कंस्ट्रिक्शन हो गया, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट घट गई। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Effect on CNS, central nervous system. अंधेरे में भी दिखाई देने लगता है, अंधेरे में दिखाई देने लगता है, तो प्यूपिल कैसा हो गया, डायलेट हो गया। तो क्या इसमें लिखेंगे, प्यूपिलरी डायलेटेशन, प्यूपिलरी डायलेटेशन। आई में प्यूपिल, जब दो चीजें होती हैं, जब आप तेज लाइट में जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं, उस समय प्यूपिल क्या होता है, उसका डायमीटर घट जाता है, क्या इसके लिए टर्म है, मायोसिस। और जब अंधेरे में आते हैं प्यूपिल डायलेट हो जाता है, तब इसको क्या बोलते हैं, मिड्रिएसिस। तो इसमें जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उस समय प्यूपिलरी डायलेट कर जाता है, अंधेरे में भी क्या होगा, प्यूपिल डायलेट कर जाता है, प्यूपिलरी डायलेटेशन। आप अंधेरे में जा रहे हैं कहीं और कोई चोर आ जाता है, रिवॉल्वर लेके आपके सामने खड़ा हो जाता है, उस समय आपको अंधेरे में भी वो रिवॉल्वर दिखाई दे जाते हैं। क्यों, प्यूपिल डायलेट हो जाता है और ब्रेन की तरफ अधिक ब्लड सप्लाई हो जाती है। इससे क्या होता है, आप अधिक अलर्ट हो जाते हैं। अगर थोड़ी वो नींद आ रही होती है, वो नींद भी गायब हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, इंक्रीज अलर्टनेस, इंक्रीज अलर्टनेस, और नींद गायब हो जाएगी। इसको क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ स्लीप। सर लॉस ऑफ, मैं फिर बता रहा हूं, मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा, तीन चीजें पड़ेंगी। तो सीधा सा है, सिंपैथेटिक। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। आप कभी जिंदगी में सिंपैथेटिक सिस्टम, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप किताब खोल के इसको रटेंगे 10 साल तक नहीं याद कर पाओगे इसको, क्योंकि इसके कहीं पर ये स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक सिस्टम, कहीं पर वो अब जैसे ब्लड वेसल ही है, कहीं पर वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है,
तो कहीं पर वेज़ोडाइलेटेशन हो रहा है, तो उसका ना ही कोई फार्मूला आप बना सकते हो। तो इसको अगर थोड़ा प्रॉपर वे में समझ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। जैसे मान लो अंधेरे का टाइम है ना, कहीं पर हम खड़े हैं, चलो मान लो अंधेरे में खड़े हैं और कोई इंसान उसको टॉयलेट कर रहा है ना, तो उस समय पास में अगर कोई चोर आके खड़ा हो जाता है, रिवॉल्वर लगा के खड़ा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इंसान क्या करेगा? भाग जाएगा ना, भागने की कोशिश करेगा, बोलो, ये रुका रहेगा? सर भागेगा। भागेगा ना। तो उस समय वो भागेगा, यानी भागने से क्या हुआ? भागने के लिए उसका ब्रेन एकदम और अलर्ट हो गया, उसको नींद भी अगर आ रही होगी, नींद भी गायब हो गई उसकी, तो अलर्टनेस बढ़ गई ना, ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। अब टोटल ब्लड सप्लाई 5 लीटर है, अब जब भागेगा तो क्या काम करेंगे? लोअर एक्सट्रीमिटीज, है ना, जब लोअर एक्सट्रीमिटीज काम करेंगे तो उनको ही ब्लड सप्लाई चाहिए, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज की ब्लड सप्लाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। वहां की ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा? वेज़ोडाइलेटेशन हो जाएगा, होगा ना। अब मान लो वो वॉशरूम वहां पर गया है, तो उस समय क्या होगा? एकदम जब वो वहां से भाग खड़ा होगा, मान लो यूरिनेशन करने गया है, तो उसके स्फिंक्टर्स क्या हो जाएंगे? टाइट हो जाएंगे, स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स हो गया, तो क्या हो जाएगा? रिटेंशन ऑफ यूरिन, यूरिन रुक गया। और सेम चीज जीआईटी में हो जाती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंटों को घट गई, स्मूथ मसल्स में क्या हो गया? रिलैक्सेशन हो गया। कुछ इसमें रटने की जरूरत है कि नहीं, सिर्फ समझने की बात है। तो उदाहरण लेके समझ लो, आप आंख बंद करके सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटीज लिखते चले जाओगे बिना किसी दिक्कत के। अब ब्लड है 5 लीटर मात्र, तो कहीं पर तो ब्लड सप्लाई घट जाती है। ब्लड सप्लाई कहाँ बढ़ी? 2 जगह बढ़ी। किसमें बढ़ी सबसे ज्यादा? एक तो देखो स्केलेटल मसल्स में बढ़ गई। जब स्केलेटल मसल में ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तभी तो काम करेंगे। अब स्केलेटल मसल में ब्लड सप्लाई बढ़ी, ब्लड कौन बढ़ा रहा है? सप्लाई कहाँ से बढ़ रही है? हार्ट रेट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट रेट इंक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। और जब भागेंगे तो उस समय रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों? हमें ऑक्सीजन अधिक चाहिए। ब्रोंकाई में क्या होगा? ब्रोंकोडाइलेटेशन हो जाएगा। अब किसी किसी जगह, अच्छा हाँ यस, हार्ट काम कर रहा है। अब हार्ट के फंक्शन को करने के लिए ब्लड सप्लाई कहाँ से हार्ट मसल्स को मिलेगी? कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाएगा? वेज़ोडाइलेटेशन हो गया। तो वेज़ोडाइलेटेशन कहाँ कहाँ हुआ? एक तो हार्ट में हुआ, यानी कोरोनरी आर्टरी में हुआ। दूसरा कहाँ पर हुआ? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स में हुआ। लेकिन टोटल ब्लड आपकी बॉडी में कितना है? 5 लीटर है। अब घटेगा कहाँ? कहीं सप्लाई घटानी भी तो पड़ेगी। सप्लाई घटेगी कहाँ? जीआईटी में। जीआईटी में खाना, भोजन थोड़ा देर में डाइजेस्ट हो जाएगा, तो जीआईटी की ब्लड सप्लाई घट जाएगी। वहां पर क्या हो जाएगा? वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। किडनी की सप्लाई थोड़ी सी घट जाएगी, वहां पर क्या हो जाएगा? वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। स्प्लेनिक सर्कुलेशन क्या होगा? थोड़ा सा घट जाएगा। तो 5 लीटर ब्लड है, तो मैक्सिमम सप्लाई कहाँ मतलब इसकी हो जाएगी? लंग्स में हो जाएगी, और कोरोनरी आर्टरी की सप्लाई बढ़ जाएगी, स्केलेटल मसल की सप्लाई बढ़ जाएगी। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? आंख बंद करके लिख सकते हो ना इसको? रटने की जरूरत है इसमें कुछ? बोलो, हेलो। नो सर। और नींद अगर सो भी रहे हो गए, पास में अगर कोई रिवॉल्वर लेके खड़ा हो जाए तो नींद गायब हो जाएगी ना? अलर्ट हो गए? तो सीएनएस में क्या हो गया? प्यूपिलरी डायलेटेशन हो गया, इंक्रीज अलर्टनेस हो गई, एंड लॉस ऑफ स्लीप।
Then effect is on genitourinary. अब यूरिनरी सिस्टम को मैंने अभी आपको बता दिया। यूरिनरी ब्लैडर में मसल का क्या नाम होता है? डीट्रूसर मसल। नाम बोलो, डीट्रूसर, DETRUSOR, डीट्रूसर मसल। तो जब सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा, मान लो अगर कोई यूरिनेट कर रहा है और उस समय कोई रिवॉल्वर लेके खड़ा होगा तो उसका यूरिन तो रुक जाओगे, भाग खड़ा होगा, तो क्या हो गया? स्फिंक्टर कंस्ट्रिक्ट हो गए, डीट्रूसर मसल रिलैक्स हो गया। अब इसमें रटने की जरूरत ही नहीं, सीधा लिख दो, रिलैक्सेशन ऑफ डीट्रूसर मसल एंड spasm of sphincters of urinary bladder, यही लिखना है आपको। So write down relaxation of detrusor muscle, relaxation of detrusor, DETRUSOR, detrusor muscle and spasm of sphincters and spasm of sphincters। इससे क्या होगा? leading to retention of urine, leading to retention of urine। स्किन की ब्लड सप्लाई कैसी होती है? घट जाती है। क्यूटेनियस, क्या लिखेंगे? क्यूटेनियस वेजोकंस्ट्रिक्शन। स्किन में ब्लड सप्लाई क्या होगी? घटाते हो, घट जाए, अब ज्यादा सप्लाई की जरूरत ही नहीं है। क्यूटेनियस में क्या होगा? जब सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है। मेटाबॉलिज्म क्या होगा? बॉडी का इंक्रीज हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म क्या होगा? बॉडी का बढ़ेगा। एडिपोज टिश्यू में क्या होगा? लाइपोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, लाइपोलिसिस। So this is the effect of stimulation of sympathetic nervous system। मेरे को लगता है अब भूलने की गुंजाइश कतई नहीं है। एग्जाम में अगर आ जाता है ANS, सिंपैथेटिक पार्ट आप बड़े आराम से लिख सकते हो। और रिगार्डिंग पैरासिम्पैथेटिक, जैसे मैंने बताया कार में एक्सीलेटर होता है, सेम सिंपैथेटिक सिस्टम का काम होता है। और एक ब्रेक होती है, ब्रेक का काम एक्सीलेटर से ऑपोजिट है, वो गाड़ी की स्पीड को कम करती है। पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन सिंपैथेटिक सिस्टम के जस्ट रिवर्स है। जैसे गवर्नमेंट चलती है, एक सरकार होती है, एक विपक्ष होता है। सरकार सही भी काम करती है, विपक्ष कहता है ये गलत चल रही है। कोई भी सरकार हो, तो उसी तरीके से समझ लो बॉडी में भी है, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दोनों का फंक्शन अलग अलग है, जस्ट रिवर्स है, और दोनों का होना जरूरी है। दोनों अगर फ्री हो जाएंगे, मान लो सरकार को अगर एकदम ढील छोड़ दी जाए तो पता नहीं वो क्या क्या करे, इसलिए उसको कंट्रोल करना भी जरूरी होता है। सेम चीज बॉडी में है या कार में है, अगर एक्सीलेटर हो, आपकी स्पीड गाड़ी की 100, 120, 150 हो जाए, वो कंट्रोल कैसे करोगे? अगर उसमें ब्रेक नहीं होगी तो वो कौन करेगा कंट्रोल? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जब गुस्सा आता है ना, गुस्से में कौन सा सिस्टम एक्टिवेट? दिमाग कब खराब होता है? जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम में लॉस ऑफ एनर्जी बॉडी की होती है, और जब आप सो जाते हैं उस समय कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है? पैरासिम्पैथेटिक। तो दोनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग है। तो आज मैंने आपको सिंपैथेटिक सिस्टम बताया, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। और इसको थोड़ा बैठ के, अपना खुद बैठ के देखना कि सिंपैथेटिक सिस्टम अगर एक्टिवेट होगा तो उसके क्या क्या फंक्शन है, कहाँ कहाँ वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, कहाँ कहाँ वेजो डायलिटेशन। अपने दिमाग में ही गुणा भाग करके इसको लिखें और फिर मेरे को आप व्हाट्सएप पे भेज दें। समझ में आया सबके? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? नो सर। ठीक है बेटे, थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू बेटे, खुश रहिए बेटे। कल क्लास, कल है वेडनेसडे ना, कल फिर वही 11 बजे मिलेंगे।
बाय बेटे, गॉड ब्लेस यू बेटे, खुश रहिए। Thank you, sir. बाय बेटे, Thank you, वेलकम बेटे, sir. वेलकम बेटे।